Hello friends, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning tissue in anatomy and physiology. In my last lecture of tissue, we learned cells of connective tissue and function of connective tissue. There was the function of connective tissue are like the support and protection of the body and body organ. As well as another function of connective tissue is connective tissue binds the organs together. As well as connective tissue is the reservoir of energy, means it stores the energy in the form of fat or triglycerides. Connective tissue is also the major source of immune responses. As well as connective tissue perform the transportation function through the blood and lymph. Means through the blood the gases like the oxygen, carbon dioxide, as well as nutrients, as well as wastage and medicines transportation is take place by the connective tissue, and that is the liquid connective tissue is blood. Today we are learning the classification of the connective tissue. As we know, connective tissue is the most abundantly distributed tissue in the our body. हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड जो टिश्यू है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. टुडे वी आर लर्निंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. Broadly, connective tissue is divided into two types. First one is the embryonic connective tissue and next one is the mature connective tissue. First of all, we are learning embryonic connective tissue. Embryonic connective tissue means the tissue which is present in the embryo. Embryo means unborn baby, जो कि ओम के अंदर होता है मदर की, ठीक है, यूट्रस में. ठीक है, तो यूट्रस के अंदर जो टिश्यू होता है दैट इज द मेसेनकाइम. ओके, मेसेनकाइम फाउंड अंडर द स्किन एंड डेवलपिंग बोन्स ऑफ एम्ब्रियो. ओके, मेसेनकाइम क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसकी स्किन के अंदर होता है. ओके, एज वेल एज क्या होते हैं उसके जो डेवलपिंग बोन्स होते हैं उसमें क्या होता है मेसेनकाइम. इन द एडल्ट पर्सन मेसेनकाइम इज आल्सो प्रेजेंट इन द एडल्ट. ओके, इन द ब्लड वेसल्स. ओके, as well as the all cells of connective tissue is made up by the only mesenchyme. Only जो mesenchyme होता है उसी से connective tissue की सभी cells का form होता है. Next one is the mucous connective tissue, that is the subtype of the embryonic connective tissue. Mucous connective tissue contains the jelly-like ground substance and fibers, fine collagen fibers. बहुत fine collagen fibers होते हैं और उसमें क्या होता है jelly-like ground substance होता है. These mucous connective tissue especially found in the umbilical cord of the fetus. जो umbilical cord होती है fetus की उसमें ये present होता है. umbilical cord क्या होती है कि जो umbilical होता है उसको उससे जो connected होता है मदर के थ्रू उसको अपन क्या बोलते हैं umbilical cord. और उसी के थ्रू क्या होता है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है चाहे न्यूट्रिएंट्स का हो चाहे वेस्टेज का हो वो मदर और fetus के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द umbilical cord. ओके, नाउ next one is the mature connective tissue. Mature connective tissue is again classified or subdivided into the loose connective tissue, dense connective tissue, cartilaginous, bone tissue and liquid connective tissue. Okay, first of all, loose connective tissue. Okay, loose connective tissue further divided into the areolar connective tissue, adipose tissue and reticular connective tissue. First of all, areolar connective tissue. Areolar connective tissue contains the fibers. Fibers are collagen fibers, elastic fiber and reticular fibers. Due to the presence of collagen fiber, elastic fiber and reticular fibers, the functions of areolar connective tissue is elasticity, support and strain to the body and body organs. हमारी बॉडी और बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करता है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इलास्टिसिटी, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स से बना होता है. नेक्स्ट वन इज द एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू इज द स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड इन द सेंस फैट. ओके, दिस एडिपोज टिश्यू प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम द स्किन. हमारी बॉडी से क्या करता है ये स्किन को लॉस नहीं होने देता है. इन द सेंस एक टाइप का ये इंसुलेटर का फंक्शन करता है. हमारी बॉडी से स्किन को हीट को बाहर नहीं जाने देता है, स्पेशली इन केस ऑफ विंटर्स. विंटर्स में क्या होता है कि जो हीट लॉस होता है हमारी बॉडी, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत कोल्ड होता है और हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए क्या करता है ये एडिपोज टिश्यू बॉडी से हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, हीट लॉस नहीं होने देता है.
नाउ द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू इज द एनर्जी रिजर्वायर, इट रिजर्व द एनर्जी is in the form of fat, means triglyceride. Another function is support and protection organs. हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करता है, एक्सटर्नल फैक्टर से लाइक द हीट से, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि कोल्ड से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. Now next one is the reticular connective tissue. Okay, reticular connective tissue is found in the stroma of liver, spleen, lymph node and bone marrow. जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के स्टोमा ऑफ लीवर में होता है, ये स्प्लीन में होता है. स्प्लीन को जिसको क्या बोलाता है अपन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी वहां पे जाके क्या होती है, डिस्ट्रक्ट होती है. देन लिम्फ नोड में होता है एज वेल एज बोन मैरो में प्रेजेंट होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. नाउ इज द फंक्शन ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू फिल्टर एंड वॉर्न आउट ब्लड सेल्स इन स्प्लीन. स्प्लीन के अंदर क्या करता है, ये हमारी जो ब्लड सेल्स है उनको फिल्टर करता है, उसको वॉर्न आउट करता है ब्लड सेल्स को. वॉर्न आउट करना इन द सेंस क्या होता है कि जो डेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हर एक ब्लड सेल का अपना लाइफ स्पान होता है, हर एक चीज का लाइफ स्पान होता है. लाइक जो हमारी आरबीसी उसका 120 डेज उसका लाइफ स्पान है, उसके बाद वो सेल डिस्टर्ब हो जाती है, डेड हो जाती है. तो जो डेड सेल्स होती है वो क्या होते हैं, वो वॉर्न आउट होती है, मतलब बाहर होती है इन द स्प्लीन. मीन्स एक्चुअली ये जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो स्प्लीन क्या करती है, हमारी डब्ल्यूबीसी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी को क्या करती है, वॉर्न आउट करती है, उसका जो भी सेल डेब्रिज है उसको रिमूव करती है, उसको खत्म कर देती है. इसलिए जो स्प्लीन होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन का होता है स्प्लीन के अंदर होता है. अनदर फंक्शन ऑफ दिस रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इज इन द नोड. ओके, नोड्स के अंदर क्या होता है, लिम्फ नोड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है या फिर फिल्ट्रेशन होता है इन द लिम्फ नोड में. ओके, एज वेल एज क्या होता है, दीज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू बाइंड द स्मूथ मसल्स. हमारी बॉडी की जो स्मूथ मसल्स सेल्स होती है ना उसको क्या करता है, ये बाइंड करता है. ओके, दिस वन वाज द loose connective tissue. Now next one is the dense connective tissue, which is the mature connective tissue. Now this dense connective tissue, actually in the dense connective tissue there are also the presence of the fibers, but more quantity, okay, as well as the thicker fibers and densely packed fibers are found in the this dense connective tissue as compared to the loose connective tissue. Okay, dense connective tissue में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, थिकर फाइबर्स होते हैं और बहुत ज्यादा डेंसली पैक होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू लूज कनेक्टिव टिश्यू इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स: डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू. दिस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. क्या करते हैं, ये टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. दिस टेंडन्स बाइंड्स मसल्स टू बोन्स, मतलब हमारी जो मसल्स होती है उसको बोन के साथ में ये बाइंड करता है. एंड लिगामेंट्स बाइंड्स बोन टू बोन. ओके, दिस लिगामेंट्स बाइंड्स बोन से बोन को ये बाइंड करता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इन लिगामेंट्स को क्या बोला जाता है, आर्टिकुलेटिंग लिगामेंट्स भी बोला जाता है. जो क्या करते हैं, जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वहां पर क्या है, बोन से बोन को ये जोड़ते हैं. Now dense irregular connective tissue. Dense irregular connective tissue is made up by the collagen fibers. ये कोलेजन फाइबर से बना होता है एंड इट प्रोवाइड द पुलिंग स्ट्रेंथ इन द डिफरेंट डायरेक्शन. वेरियस डायरेक्शन में क्या करता है, पुलिंग स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी, ये जहां पर ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव प्रेजेंट होते हैं जिसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, तो क्या हमारी बॉडी के हमारे पार्ट जो होते हैं, हमारी जो जॉइंट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ fibers, means collagen fibers, means dense irregular connective tissue. Now elastic connective tissue. Elastic connective tissue means there are present of elastic fibers and fibroblast cells. इसमें क्या होता है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है, क्योंकि इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स विच प्रोवाइड द इलास्टिसिटी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्रेजेंट इन द लंग्स एंड आर्टरीज. लंग्स एंड आर्टरीज में प्रेजेंट होती है. इलास्टिसिटी होने के कारण क्या करता है, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर जब एयर फिल्ड होती है लाइक दैट, तो हमारे जो लंग्स का क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द इलास्टिसिटी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. जब एक्सेल होता है तो वो क्या, लंग्स अपनी रियल शेप में आता है, मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है ड्यू टू द इलास्टिसिटी. मीन्स दिस इलास्टिक फाइबर के कारण क्या होता है, उसमें इलास्टिसिटी है,
टीयरिंग वेयरिंग नहीं हो पाती। लाइक द आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज में भी क्या होता है, जब हार्ट फोर्सफुली जब ब्लड पंप करता है तो आर्टरीज क्या करती है, बहुत ज्यादा ब्लड आता है तो लिटिल बिट वो डायलेट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नाउ कार्टिलेज, कार्टिलेज इज द वन टाइप ऑफ द मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कार्टिलेज में क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स होती है। द मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑल्सो देयर आर प्रेजेंस ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। इसमें क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स होती है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ कार्टिलेज आर मोर टफ होता है एज कंपेयर टू dense connective tissue and loose connective tissue, but not more tougher as compared to the bone. bone से ज्यादा टफ नहीं होता, हार्ड नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्ड्रोसाइट, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर होने के कारण ये जो कार्टिलेज होते हैं इसमें इलास्टिसिटी भी होती है, वो कोलेजन फाइबर होने के कारण क्या होता है, स्ट्रांग होता है, टफ होता है। ठीक है, देन देयर आर द थ्री टाइप ऑफ कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। दिस हाइलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ द बोन्स, स्पेशली लॉन्ग बोन्स। इनके इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज भी बोलते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज। ओके, देन रिब्स की एंड पर भी प्रेजेंट होते हैं ये, एज वेल एज रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं कौन, हाइलाइन कार्टिलेज। रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहां पे, फॉर एग्जांपल लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आर मेड अप बाय द हाइलाइन कार्टिलेज। देन फाइब्रो कार्टिलेज, Fibro cartilage is a more tougher as compared to the hyaline cartilage, which is present in the pubic symphysis and intervertebral disc. Pubic symphysis क्या होता है कि जो हमारी pubic bone है, ठीक है, वो दोनों बोन को क्या है, जोड़ के रखता है। इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा क्या करता है, ये उसको जोड़ के रखता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, pubic symphysis। एज वेल एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो हमारी जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, बहुत सारे जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री के बीच में क्या है, जो कार्टिलेज है उसको क्या बोलेंगे अपन, फाइब्रो कार्टिलेज, जिसको अपन बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। पिक्चर से भी आपको इजीली क्लियर होगा। नाउ इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिसिटी होगी, विच आर प्रेजेंट इन द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस is the part of the body which prevent the entry of food and water or another particles into the respiratory tract. Okay, as well as present elastic cartilage into the external ear. External means this external ear. Okay, means this pinna जिसको क्या बोलते हैं, auricle. As well as in the auditory canal. Auditory canal क्या होता है, हमारी बॉडी का जो अंदर का पार्ट है, जो कैनाल होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, auditory canal. Now another type of this mature connective tissue is the bone. Bone is the one kind of the connective tissue that is the hard or solid connective tissue. Okay, bones are again divided into two types. Like they are basic on the basis of shape. There are the five kind of the bone, like long bone, short bone, as well as flat bone, irregular bone and sesamoid bone. इस bone को अपन स्केलेटल सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन, ये अनदर क्लासिफिकेशन होता है। Then liquid connective tissue, that is the two kind of liquid connective tissue, like the blood and lymph are the liquid connective tissue. Blood में क्या होता है, there are the plasma and blood cells like RBC, WBC and platelets. Then lymph is the part of the lymphatic system which transport into the lymphatic vessels. तो dear friends, this is the classification of connective tissue. मुझे लगता है कि आपको मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे पसंद आ रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।